بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام حسینہ ہے اور میں اپنے نام کی طرح خوبصورت بھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت ہمیشہ مرد کے دل پر راج کرتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس کا ایک بڑا سا خاندان تھا جس میں اس کی بہنیں، اس کے بھائیوں کی بیویاں، ماں باپ اور یہاں تک کہ اس کے دادا دادی بھی تھے۔ سب لوگ یہیں رہتے تھے۔ میرے گھر والے نہیں تھے، میں یتیم تھی، صرف اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میری خالہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا خاندان ہے، یہاں پر تمہیں بہت مشکل ہوگی، لیکن مجھے اپنے شوہر احمد کی محبت پر پورا یقین تھا۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے ہر آسانی کرے گا، تو ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھ پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ شروع میں ہی سب کو یہ بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ ایک دن میرے سسر نے کہا کہ محلے میں شادی ہے تو اس نے بھی وہاں پر جانا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ محلے کی شادیوں میں نہیں جائے گی، یہ محلے والے کون سا ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے سسر نے کہا کہ تمہاری بہنیں جا رہی ہیں تو یہ بھی جائے گی، جو قانون تمہاری بہن پر لگتا ہے وہی قانون تمہاری بیوی پر لگے گا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے آ کر کہہ دیا کہ نہیں، میری بیوی پر صرف میرا قانون لگے گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ اس دن سبھی کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص اپنی بیوی پر جان دیتا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لوگ مجھے کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتی۔ ہم لوگ باہر آتے جاتے، باقی بھائیوں کی بیویاں کہتی کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، ہمارے شوہر تو ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جاتے، نہ ہی ہماری سائیڈ لیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہمارے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تو میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہمارے انجوائے کرنے کے دن ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اولاد کی خاطر بے چین ہونے لگا، کیونکہ باقی سارے بھائیوں کی اولادیں تھیں اور شادی کے پہلے سال میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے بچوں کو اٹھاتا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ اس کے ہاں بھی بچہ ہو۔ لیکن ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اب تک کوئی بھی ہماری اولاد نہیں تھی۔ میری ساس اور نند سے بھی نہیں بنتی تھی۔ میری دونوں نندوں کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی۔ ویسے تو باقی بھائیوں کی بیویاں بھی میرے ساتھ کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے دل کی بات کر لیتی تھی، کیونکہ ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ مجھے میری ایک دیورانی نے بتایا کہ ہماری ساس تمہارے اوپر جادو کروانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی بات پر یقین نہیں کرتی، اگر کروانا چاہتی ہے تو کروا دیں، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی میرا شوہر جب تک میرے ساتھ ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ میری دیورانی کا کہنا تھا کہ اس نے شروع میں بھی مجھ پر تعویذ ڈالے تھے۔ پہلے تمہارے شوہر کی طرح میرا شوہر بھی بہت خیال رکھتا تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس نے شادی بھی بہت جلد کروائی تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاؤ باؤ ہی بدل گئے اور سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب تو یہ میرے پاس بیٹھنے کو بھی راضی نہیں ہے، میرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، جو اس کی ماں بولتی ہے وہی کرتا ہے۔ اس نے سارے بیٹوں پر جادو کروایا اور اب تمہارے شوہر کی باری ہے، اس پر بھی اثر ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ اثر ہمیشہ غریبوں پر ہی کیوں ہوتا ہے، امیروں پر جادو کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ایسی چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے میں بے فکر تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ تو سارے جاہل ہیں، ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پر نہ جانے کیوں میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آج جمعرات ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم سیر کرنے جائیں گے، ہم ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک جمعرات کو نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہماری شادی کو 3 سال لگ گیا ہے، ہم اب کوئی نئے شادی شدہ جوڑے تو نہیں ہیں کہ ہر روز سیر کو نکل جائیں۔ اسی طرح ایک دن وہ میری سالگرہ کا تحفہ لانا بھول گیا، اور اس نے کہا کہ اب ہر دفعہ تو تحفہ نہیں ہوتا نا، تم میری بیوی ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے، میں کوئی تمہارا منگیتر تو نہیں ہوں کہ اس طرح کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ کہتے ہیں کہ مرد کی محبت پر غرور کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، اور شاید میں بے وقوف تھی۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میرے شوہر کی حرکتیں بدلنا شروع ہو گئی، وہ روایتی شوہر بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ نہ تو میری تعریف کرتا اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا۔ میں تیار ہو کر اس کے سامنے آتی تو کہتا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی لگ رہی ہو، جیسے روز لگتی ہو۔
जबकि पहले तो अगर मैं तैयार होती और उसके सामने आती तो 1-1 घंटे तक मेरी तारीफ करता। मुझे ऐसे देखता जैसे मैं जन्नत की कोई हूर हूँ। कहता था कि पता नहीं तुम मुझे कैसे मिल गई हो, मैं कैसे इतना खुशकिस्मत हो गया हूँ। लेकिन आजकल वो इस तरह की कोई बात नहीं करता। एक दिन मेरी नंद के साथ झगड़ा हो गया। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसने कहा कि हो जाते हैं घर में झगड़े, अब क्या हर झगड़े के बाद अदालत लगानी है। उसने 4 बातें क्यों की, तो चुप तो तुम भी नहीं रही होगी, तुमने भी कुछ बोल दिया होगा तो बस हिसाब बराबर हो गया। एक घर में रहेंगे तो ये सब तो होगा। मेरा शौहर मेरे पास बैठा होता तो अपने मोबाइल में मसरूफ रहता, मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसके लिए मेरी कोई भी बात अहम नहीं थी। पहले अगर मैं टाइम पर खाना नहीं खाती थी तो वो बेचैन हो जाता था। जब तक मैं खाना नहीं खाती वो भी नहीं खाता था। लेकिन आजकल उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कहा कि मैंने खाना तो नहीं खाना, तो उसने कहा कि ठीक है, जब भूख होगी तो खा लेना। क्या मेरी सास ने वाकई मेरे शौहर पर जादू करवा दिया था? तभी वो अचानक से बदल गया था। लेकिन इस तरह तो बाकी लोगों के साथ भी होता है। 1-2 साल शादी के अच्छे गुजर जाते हैं, उसके बाद सारे ही बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया पर जादू होता रहता है। लेकिन एक दिन मैंने अपनी सास को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो कहने लगी कि मैं तो इसको जानबूझकर ढील दे रही थी कि चलो कुछ दिन शौहर की मोहब्बत के मज़े ले ले, लेकिन मुझे तो पता था कि मैं उसके धागे खींच सकती हूँ। बाकियों को तो ऐसे ही सीधा किया है, लाइन पर ले आई थी, तो फिर ये किस खेत की मूली थी। और ये औरत बेशक खूबसूरत है, लेकिन औरत की खूबसूरती उसकी किस्मत होती है। मैंने तो अच्छी अच्छी शक्लों वाली औरतों को भी जलील होते देखा है और बदसूरत औरतों को राज करते देखा है। खाली खुली खूबसूरती से कुछ नहीं होता, अक्ल की भी ज़रूरत होती है, और उसके अंदर से अक्ल भी नहीं है। बस अब मेरे घर में सब कुछ ठीक है, जैसे बाकी सारी रहती हैं दबकर ये भी रहेगी। इसका मतलब है मेरी सास ने मुझ पर वाकई जादू कर दिया था और मेरी कुछ चीज़ें भी घर से गायब थी। पहले मुझे लगा कि मैं खुद ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी वो चीज़ें ज़रूर तलाश करूँगी। अगर मैंने कहीं रखी हैं तो जाहिर है मुझे मिल जाएंगी। मैंने अपना कमरा बिछान मारा, स्टोर भी देख लिया, बाकियों से भी पूछ लिया कि उनके सामान में तो नहीं चली गई। लेकिन मेरी वो चीज़ें घर पर नहीं थी, जिसमें एक सूट शामिल था, मेरी कलाई से उतरी कुछ चूड़ियाँ थी, एक अंगूठी थी। इसका मतलब कि वो चीज़ें घर पर नहीं थी तो कहाँ चली गई थी। मैंने अपने घर में भी जाकर पूछा कि कहीं मेरी खाला के घर तो नहीं रह गई। लेकिन शादी के बाद मैं उनके घर रात के लिए तो कभी गई नहीं थी कि वहाँ चीज़ें छोड़ आती। इसका मतलब है कि मेरी चीज़ों पर जादू करवाया गया था और ये सब कुछ मेरी सास ने किया था। एक दिन मोहल्ले में एक कुरान खानी हुई तो वहाँ पर बुलाया गया। बाकी सब मसरूफ़ थे इसलिए मैं चली गई। वैसे मुझे भी जाने को दिल नहीं करता था, दिल उदास था, कहीं आने जाने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन वहाँ पर गई तो एक औरत आई हुई थी जो बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ रही थी और अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। जब सब ख़त्म हो गया तो सब लोग उसके पास जाकर बैठने लगे। मैं भी चली गई। उसने मुझे देखा और कहा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा कि खाली खूबसूरती से क्या होता है, किस्मत भी तो खूबसूरत होनी चाहिए। उसने कहा कि लगता है नज़र लग गई है। मैं हैरान हुई। मैंने कहा मेरी खुशियों को नज़र लग गई है। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने कहा कि क्या ऐसा कोई किसी पर जादू करवा सकता है? उसका कहना था कि बुरी नीयत के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान आप पर बुरी नज़र रखे तो उसे जादू करवाने की क्या ज़रूरत है, उसको आपकी लगने वाली नज़रें ही काफ़ी हैं। और मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ। उसने कहा कि तुम किसी दिन मेरे घर आना, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मैं सबकी मदद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करूँगी। मैं उस औरत के पास चली गई। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला कि अपनी खाला के घर जा रही हूँ। मैंने सुना था कि इस तरह के लोग पैसे भी लेते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ कुछ पैसे भी रख लिए। मुझे पैसे देने से कोई मसला नहीं था, बस मेरा ये मामला हल हो जाता।
मैं तो हैरान हूँ कि कभी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैंने उसे तफसील से सब कुछ बताया। उसने कहा कि जब किसी शोहर पर जादू किया जाता है तो उसको अपनी बीवी से बदबू आती है और उसे अपनी बीवी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। पहले तुम्हें ये चेक करना होगा कि तुम्हारे शोहर पर जादू हुआ है या नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने जादू किया है, तो मुझे उस औरत ने बताया कि नहीं, माँ अपने बेटों पर जादू नहीं करवाती हैं। अगर बेटों पर जादू करवा दे तो जादू उल्टा हो जाता है। उन्होंने तुम पर जादू करवाया है, तुम्हें इस तरह का बना दिया कि तुम्हारा शोहर तुमसे दूर हो जाए। तुम अपने शोहर को अच्छी नहीं लगती, उसे तुम्हारी हर बात बुरी लगती है। मैंने कहा कि आपको तो इस बारे में बहुत सारी मालूमात है। उसने कहा कि हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन हमारे साथ इस तरह के मामलात चलते आ रहे हैं। हमारा सारा ख़ानदान ही इस काम में है। मैं ये काम पहले बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। उसने कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है ना, इसीलिए। मैंने कहा कि लेकिन जब मैं आपके घर में आई हूँ तो मैंने आपके घर में एक बच्चा देखा था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो मोहल्ले का कोई बच्चा होगा। उसने कहा कि तुमने वाकई मेरे घर में बच्चा देखा था? मैंने कहा कि आपके घर के बाहर बैठा था, उसके हाथ में कोई चीज़ थी और उसके साथ खेल रहा था। मुझे लगा आपका बच्चा है। तो वो हैरान हो गई। उसने कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी, हम किसी के घर में दाखिल होते तो हमें इस तरह के बच्चे या कोई औरत नज़र आती है, क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? अब इतना परेशान क्यों हो रही हैं? उसने कहा कि देखो, मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरे घर में कोई बच्चा नहीं आता क्योंकि सब लोग डरते हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि लोगों में ये बात मशहूर है कि मैंने कुछ जिन्नात को काबू में किया हुआ है, इसीलिए लोग इस घर में नहीं आते। मुझे लोग कुरान खानी और फातिह खानी के लिए भी ले जाते और वो मुझे बुरा नहीं समझते, लेकिन मुझसे डरते ज़रूर हैं, क्योंकि इसी तरह मेरे घर से कुछ लोगों ने आवाज़ें भी सुनी हैं। तुम्हें वो बच्चा नज़र आया? जबकि यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं था। मैं हैरान रह गई और मुझे डर भी लगा। मैंने कहा कि मुझे डराएं तो नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। अल्लाह की कसम, जब मैं आपके घर आई हूँ तो वो आपके घर में बैठा था और बच्चा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो इस बात पर मुस्कुरा दी। उसने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो जिन्नात को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी उन लोगों में से हो, वरना यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा हुआ तो मेरे साथ भी कुछ नहीं है और मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करती। ये तो शादी के बाद अपने शोहर के बदलते रंग देखें तो उन बातों पर यकीन करने लगी। उसने कहा कि ना यकीन करने से ये बातें अपना वजूद नहीं खो देती। अगर एक इंसान उन पर यकीन नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें गलत हो जाती हैं। जबकि तुम्हारे शोहर में जो अलामात बताई जाती हैं, तुम वो चेक करो कि वो हैं या नहीं, उसके बाद दोबारा मिलने के लिए आओ। पर यह बात किसी को ना बताना कि तुम मेरे से मिली थी या मेरे से मिलने आती हो। मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, मैं तो आज झूठ बोल कर आई थी। उसने कहा कि ठीक है, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं दिल में सोच रही थी कि अगर वाकई इस औरत के पास इतनी करामात हुई और मेरा मामला हल हो गया तो मैं अपनी बाकी देवरानी और जेठानी को भी कहूँगी कि वो भी उससे मदद लें। लेकिन फ़िलहाल उसने कह दिया था कि ये बात किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी खामोश हो गई और मैंने कहा कि ठीक है। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने हाथों से घर में कोई मीठी चीज़ बनाना जो बहुत ही मज़े की बना सकती हो और अपने शोहर को खिलाना। अगर उसे पसंद आई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है या कोई बदतारीफ़ी की तो फिर परेशानी वाली बात होगी। मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने अपने शोहर के लिए हलवा बनाया और किसी और को उसको हाथ भी नहीं लगाने दिया और डोंगे में डालकर अपने कमरे में आई। रात हुई तो मैंने अपने शोहर के सामने रखा। उसने कहा कि यह किस खुशी में बनाया है? मैंने कहा कि बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, आप खाकर बताएं कैसा बना है। मैं अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी, लेकिन उसने जैसे ही पहला नवाला लिया तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, इतना घटिया हलवा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। जो काम नहीं आता वो मत किया करो। मैं हैरान रह गई। मैंने खुद खाया तो वो बहुत मज़ेदार बना हुआ था। इसका मतलब कि उस औरत की बात बिल्कुल ठीक थी। वो दूसरी बात भी सच हो रही थी।
मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुमसे अजीब सी बदबू आती है, नहाती क्यों नहीं हो, जबकि मैं रोज़ाना नहाती थी और खुशबू लगाना तो मेरी शादी से पहले से ही आदत थी। इसके अलावा मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ है। देखते ही देखते सब कुछ बदल रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया, बहुत परेशान हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरे शौहर पर जादू किया गया है। मैं उस औरत के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि आज जब तुम घर में दाखिल हुई हो तो तुम्हें कोई दिखाई दिया? मैंने कहा कि नहीं, आज तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैंने अपना मसला बताया। उसने कहा कि फिर इसका मतलब है तुम्हारे शौहर पर जादू किया गया है और उसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि कैसे होगा? तो उसने कहा कि पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जादू किस नौइयत का है, उसके बाद ही हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे देख लेने दो कि मामला कितना ख़राब है। मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? उसने कहा हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं काफ़ी परेशान हो गई और घर वापस आ गई। मेरी एक जेठानी यहीं पर बात कर रही थी कि जाने इन मर्दों को क्या है, हमें खुश क्यों नहीं रखते। मर्द के लिए औरत को बनाया गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही नहीं है। क्या आखिरत में इनसे सवाल नहीं होगा? मेरे दिल में तो यही बात थी कि मेरा मामला हल होने वाला है। जब मेरा मामला हल हो जाएगा तो मैं तुम सब लोगों की मदद करूंगी। लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहीं खो गई है। मैंने कहा कि हाँ क्या करूँ, सब कुछ तुम लोगों के सामने ही है। सब कुछ पहले कैसा होता था और अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी यही हुआ था। हम तो तुम्हें देखकर दुआ कर रहे थे कि तुम्हारी खुशी की उम्र ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वही हुआ है। ये ख़ानदान ही ऐसा है और हमारे शौहर तो हाथ से निकल गए हैं। उनमें से कोई एक भाई भी अलग होने का कदम उठाए तो बाकियों को भी बहाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सारे अपनी माँ के गुलाम हैं। मुझे आजकल मेरी सास पर बहुत गुस्सा आता। वो मेरी नंदू को भी यही कहानियाँ सुनाती कि बड़ी आवाम में उड़ रही थी, अभी देखो कैसे ज़मीन पर आ गई है। जब अपना दही खट्टाओ तो इंसान किसी को क्या कहे। मेरे शौहर को न जाने क्या हो गया था। मुझे वो दिन बहुत याद आते जिनमें हम लोगों में बहुत मोहब्बत थी और हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। मैं अपने कमरे में बैठी यही कुछ सोच रही थी जब अचानक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। वो बच्चा जो मैं उस औरत के घर में देख आई थी मेरे कमरे में बैठा था। उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है और अगर मुझे बच्चा नज़र आया तो इसका मतलब है वो इंसान का बच्चा नहीं होगा। उसकी उम्र शायद 4 या 5 साल होगी। उसकी आंखें भी सब्ज़ थी। उसने छोटा सा शलवार कमीज़ पहन रखा था। ऐसा लगता था कि छोटा सा आदमी है। वो मेरे कमरे में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ना ही वो अपनी जगह से हिल रहा था। मैं पत्थर बनी बैठी थी। अचानक मेरी एक देवरानी कमरे में आई और कहने लगी कि आज रोटी पकाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, 8 बजने वाले हैं, आ जाओ। मैंने फटी हुई आंखों से उसे देखा तो उसने कहा क्या हो गया है, ऐसे क्यों बैठी हो? खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने इशारा किया कि ये साइड पर क्या है। उसने कहा कि क्या, किस तरफ इशारा कर रही हो, समझ नहीं आ रही है, मुंह से बोलो। मुंह में क्या सुपारी डाली हुई है? मैंने उससे फिर इशारा किया कि अपनी साइड पर देखो क्या है। वो बच्चा भी खड़ा था, लेकिन शायद मेरी देवरानी को नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? मैं भाग उठी और डर कर देवरानी के गले लगी। मैंने कहा कि इस कमरे में एक बच्चा खड़ा है, मुझे देख रहा है। वो भी डर गई और उसने जोरदार चीख मारी और साथ ही लाइट चली गई। लाइट जाने के सीन ने हमारे उस डर को और बढ़ा दिया। हम दोनों डर गए। बाकी लोग भी आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? तो मेरी देवरानी ने कहा कि इससे पूछो, अजीब अजीब बातें कर रही थी, डरा रही थी मुझे। अगर काम नहीं करना तो साफ कह देती, मुझे डराने की क्या ज़रूरत थी। वो वहाँ से चली गई। मैंने कहा कि मैं उसको डरा नहीं रही थी, मैंने इस कमरे में मेरा शौहर भी आ गया। उसने कहा कि क्या देखा तुमने इस कमरे में? आजकल तुम बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती हो और अब तुमने बाकी लोगों के साथ भी मजाक करने शुरू कर दिए हैं। मेरे शौहर ने मुझे सबके सामने डांट दिया और मैं खामोश हो गई। मैंने तफसील नहीं बताई, क्योंकि जब वो लोग यकीन कर ही नहीं रहे थे तो पूरी बात बताने का क्या फ़ायदा था। मैं खामोश हो गई। अब मुझे डर लगने लगा।
उस औरत ने कहा था कि तुम 2 हफ्ते बाद आना, और ये 2 हफ्ते अभी तक गुजर ही नहीं रहे थे। उसने ये भी बताया था कि 2 हफ्ते बाद मेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ज़रूर बता देगी मुझे अपने कमरे में डर लगता। एक दिन मैंने शोहर से कहा कि आप क्यों बदल गए हैं और इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। उसने कहा कि देखो, इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, मेरे कारोबार में मसले मसाइल बन रहे, हमारे औलाद भी तो नहीं हो रही। मैंने कहा कि अगर मेरी औलाद नहीं हो रही तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ बुरा रवैया रखें। अगर आप मुझे टेंशन देंगे तो मैं मज़ीद बीमार हो जाऊंगी। बिलाखिर मेरे शोहर ने प्यार से बात की और उसने कहा कि हम जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। बिलाखिर कोई तो अच्छी बात की उन्होंने, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन जब मैंने दोबारा पूछा कि कब जाएंगे, किस टाइम जाएंगे, तो इस बात पर वो और भी गुस्सा होने लगे। उसने कहा कि पीछे क्यों पड़ गई हो, जाएंगे, और ये बात किसी को ना बता देना, नहीं तो घर में फसाद बन जाएगा। हम खुद ही डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या मसला है। उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि इलाज करवाने की ज़रूरत है तो इलाज शुरू करवा देंगे। इस मामले में इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मगर आपको इससे भी ज़्यादा साथ देना चाहिए, और अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए। ये भी हो सकता है कि मसला आपके अंदर हो। अगर मसला आप में हुआ तो फिक्र नहीं करें, मैं आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी, थोड़ा बहुत साथ देकर जिताऊंगी नहीं। आपने तो मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन मोहब्बत को किसी जगह फेंक ही दिया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। जिस तरह दिन रात मेरे साथ रवैया रखते हैं, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। अल्लाह से दुआ है कि औलाद न होने का सारा इल्ज़ाम आपके सर आए, ताकि आपको पता चले कि इस माशरे में जिनकी औलाद नहीं होती उनको दुनिया किस नज़र से देखती है। 2 हफ्ते गुजर गए थे। मैं उस औरत के घर गई। मैंने उसे बताया कि अब मुझे जल्दी जल्दी मेरे मसले का कोई हल बताओ। उसने कहा कि तुम्हारे शौहर पर तुम्हारी सास ने जादू करवाया है, यानी कि तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारे रिश्ते के ऊपर, ताकि तुम लोग कभी भी खुश नहीं रहो। अगर वो तुम्हें अपने साथ रखे तो तुम कभी भी खुश नहीं रहो, और ये जो तुम्हारी औलाद नहीं हो रही ये भी उसी वजह से नहीं हो रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक लड़की थी जो अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती थी, उनको मेरे साथ ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि कभी कभी नफ़रत की भी कोई वजह नहीं होती है, बस इंसान रिवायतों में आकर इस तरह की हरकत करता है। एक सास बहू का रवैया हमेशा ऐसा ही होता है। अब तुमने ये सोचना है कि आगे क्या करना है। उसने कहा कि आगे एक अमल करना होगा, और ये अमल सिर्फ तुम खुद ही कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। मैंने कहा कि कोई आसान अमल बताना, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उसे बच्चे वाली बात भी बताई। उसने कहा कि देखो, अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब वो कोई बुरा जिन नहीं है। मैंने कहा कि क्या वो जिन है? उसने कहा कि वो बच्चा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारे कमरे में आया और फिर गायब हो गया, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे अमल क्या करना है। उसने कहा देखो, जहाँ पर इस इलाके की आबादी ख़त्म होती है वहाँ से गाँव शुरू होता है। वो गाँव बहुत अजीब है, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते और जाता भी कोई नहीं है। बस वही लोग जो मजबूरी में रहते हैं, जो किराया नहीं देना चाहते, लेकिन वो जगह रहने के काबिल भी नहीं है। वहाँ एक पुराना दरख्त है जिसको जिन्नात का दरख्त कहते हैं। तुम्हें उस दरख्त के नीचे बैठकर 3 दिन तक सूरह जिन पढ़नी होगी, और जिन्नात तुमसे खुश होकर तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर होंगे। मैं डर गई। मैंने कहा कि ऐसी जगह पर जाकर बैठना और सूरह जिन पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, और आप कह रही हैं कि वो मेरे सामने हाजिर होंगे। क्या वो मेरे सामने आ जाएंगे? उस औरत ने कहा कि वो तुम्हारे सामने आएंगे, और ये नहीं पता कि वो किस रूप में सामने आते हैं। अगर तुम डर गई तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर तुम नहीं डरी और उनको मसला बताया तो वो तुम्हें कुछ ऐसा देंगे कि तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, आप मुझे कोई और रास्ता बताएं। उसने कहा कि मैंने 2 हफ्ते का वक्त इसीलिए मांगा था। तुम्हारे ऊपर जो जादू किया गया उसकी एक ख़ास किस्म की नोयत है। सारे जादू एक तरह के नहीं होते। तुम्हारी ज़रूरत और तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ों पर जादू है। इसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ भी खिलाई गई है, और जब कोई चीज़ खिलाई पिलाई जाती है तो बहुत ही बुरा होता है। ज़ाहिर है तुम एक घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। किसी ने तुम्हारे सालन में, तुम्हारे खाने में, किसी चीज़ में आराम से कुछ मिला दिया होगा, और उनके लिए ये मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से तुम्हें कोई गंदगी खिलाई है जिसकी वजह से तुम पर जादू हुआ है। अब यही इसका हल है। अगर तुम करना चाहती हो तो करो, नहीं तो हालात को उनके हाल पर छोड़ दो
और समझ लो कि जैसे दुनिया के सारे शौहर बदल जाते तुम्हारा शौहर भी बदल गया। ये भी सच है कि दुनिया के सारे शौहर बदल जाते हैं, लेकिन तुम खुद ही बताओ कि क्या तुम्हारे शौहर ने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी? क्या वो तुम्हारे लिए बेचैन नहीं रहता था? मैंने कहा कि उसने मुझसे सिर्फ शादी नहीं की थी बल्कि मुझसे मोहब्बत की थी, ये जानते हुए भी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। उसने फिर भी मुझसे शादी की, अपनी जेब से मेरा जहेज बनाया था कि उसके घर वालों के सामने मेरी इज्जत बन जाए। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे सबसे बचाया था, और जो उसके उसूल और रवाज नहीं थे उसने वो भी मेरे लिए निभाए थे। बहुत ख्याल रखता था। उसकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कुछ भी करूँगी अगर उसकी मोहब्बत वापस आ सकती है तो उसके लिए कुछ भी करूँगी, और मुझे औलाद भी चाहिए। उसने कहा कि फिर यही अल्लाह तुम्हें करना होगा। मैंने कहा कि मैं करूँगी। मुझे अपने शौहर के साथ गुजारे मोहब्बत के पल याद आ गए जो हमने इतने अरसे से नहीं गुजारे थे। मैं उनको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस दरख्त के नीचे जाऊंगी, बस एक दफ़ा मुझे रास्ता दिखा दें। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। उसने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन रात हो गई थी। घर में फसाद बन गया। मेरी सास ने कहा कि आजकल ये घर से निकल जाती है, अपने हिस्से के काम भी नहीं करती, इससे कहो ये क्या तरीका है। जाहिर है मैं उस औरत के घर ही जा रही थी। वो मुझे गांव दिखाने भी ले गई थी। उसने मुझे वो दरख्त भी दिखा दिया था। दरख्त दिखने में बहुत खौफनाक था, 300-400 साल पुराना लग रहा था। उसके ऊपर रस्सियाँ लगी हुई थी और उसकी जड़ें बहुत चौड़ी थी। उसके नीचे किसी ने दिए वगैरह भी जलाए थे। मुझे तो डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। मेरी सास ने मेरे शौहर को शिकायत लगाई और मेरे शौहर ने रात को मुझसे झगड़ा किया और कहा कि तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो। अगर तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती तो तुम्हारे हालात भी ठीक नहीं है, तुम्हारी हरकतें भी ठीक नहीं है, तो कम से कम घर के काम तो किया करो। रिपोर्ट भी आ गई है, उसके मुताबिक मेरे अंदर ही मसला था, क्योंकि जाहिर है जब मुझ पर जादू किया गया था तो मसला भी तो मेरे अंदर ही आना था। मेरे शौहर को एक और वजह मिल गई थी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने की। मैं चुपचाप सब कुछ सुनती रही और दिल में सोचती रही कि मैं अपने लिए वो सब कुछ ज़रूर करूँगी जो मुझे उस औरत ने बताया है, क्योंकि अब पानी सर से गुजर गया है। मेरे शौहर ने तो अब सबके सामने मुझे डांटना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले तो वो कमरे में भी मेरे साथ कभी लड़ाई नहीं करता था। मैं खामोश हो गई। मेरे शौहर को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी खामोश हो गया और मुझसे मुंह फेर कर सो गया। मैंने सारी रात हिम्मत बढ़ाई और सोचा कि कल से मैं ये काम करूँगी। सुबह मैं उस औरत के घर जाने लगी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि जिस दिन तुमने अमल शुरू करना है मुझे बता कर करना। रास्ता तो उसने मुझे बताया था और कहा था कि वो मेरे साथ नहीं आएगी, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे बताने के लिए चली गई। जब मैं उस घर में जाने लगी तो एक बूढ़ी औरत ने रोका जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि नजमा नामी औरत से मिलने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों, कोई कुरान खानी करवानी है? मैंने कहा कि नहीं। फिर क्या मसला है? वो पता नहीं मुझसे क्यों पूछ रही थी। मैं भी जवाब दिए जा रही थी। मैंने कहा कि घर के हालात बड़े बुरे हैं, मुझ पर मेरी सास ने जादू करवाया है, उसका तोड़ करना चाहती हूँ, इसीलिए उस औरत से राब्ता किया है। उस औरत ने कहा कि बेटा, हालात सबके बुरे होते हैं, और जब कोई अनहोनी मुसीबत में फंस जाता है तो वो यही समझता है कि मुझ पर जादू हो गया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह के काम नहीं करो। वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि अच्छी नहीं है तो आप लोग उसको अपने घर पर कुरान खानी और नात के लिए क्यों बुलाते हैं? उसने कहा कि लोग उससे अनजाने जो भी उनके कामों में पड़ा है उन्होंने नुकसान उठाया है, तुम भी मत जाओ। वो तो नसीहत करके वहाँ से चली गई, पर मैं तो पहले ही गम उठा रही थी। मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता था। और रात को जो मेरे घर में लड़ाई हुई थी अपने शौहर से, जो मेरी सास ने मेरी क्लास लगवाई थी, मैं वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंदर दाखिल हो गई। मैंने नजमा से कहा कि मुझसे पहले भी किसी ने ये अमल किया है? उसने कहा कि बहुत लोगों ने किया है। मैंने कहा कभी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है? तो इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर तुम डरोगी तो तुम्हारा अमल बेकार जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तुम ये सब कर पाओगी। इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक मौका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि जिन्नात अपनी असल शक्ल में आएंगे? उसने कहा कि असल शक्ल में आएंगे। मैंने कहा उनकी शक्ल कैसी होती है? उसने कहा मुझे नहीं पता,
उनकी कोई एक शक्ल नहीं होती। अब ये तो तुम्हारी किस्मत है कि वो किस रूप में सामने आते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, या किसी खौफनाक चीज़ के रूप में जिसे देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ और डर जाओ। ज़ाहिर है तुम्हारा भी इम्तहान लेंगे, उसके बाद ही तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छी बात बता दो। उसने कहा कि अच्छी बात तो कोई नहीं है। उसने ये भी कहा कि अगर तुमने ये नहीं करना तो ना जाना और रास्ते से पलट जाना और मेरे पास भी दोबारा नहीं आना। मेरा ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना। मैंने तुमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। बार बार मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए आओगी और फिर काम नहीं करोगी तो क्या फ़ायदा। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पता था कि मुझे फ़ैसला करना है, लेकिन ये तो थोड़ी देर का डर था। जो मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी वो तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी थी, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। जब मैं उस तरफ जाने लगी तो अचानक हैरान रह गई, वो बच्चा मेरे साथ चल रहा था। मुझे अभी वहाँ से अपने घर पर भी काबू पाना था। उस बच्चे से तो मुझे डर नहीं लग रहा था। जब मैं दरख्त के पास जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कह रहा हो कि तुमने नहीं जाना वहाँ पर, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ इशारा ही कर रहा था। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे, मेरे बहुत मसाइल हैं, देखो मुझे जाने दो, मुझे तंग नहीं करो। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। मैंने कुरान पाक खोला और सूरह जिन पढ़ने लगी। नजमा ने कहा था कि वो तीसरे दिन तुम्हारे सामने आएंगे, इसलिए आज तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने सूरत पढ़ ली थी और उसके बाद दूसरे दिन भी वहाँ पर गई, लेकिन तीसरे दिन में वाकई बहुत डरी हुई थी। वो बच्चा रोज़ मुझे रोकता, लेकिन मैं नहीं रुकती थी। इस दौरान फिर मेरी शौहर से लड़ाई हो गई और मेरे इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। अब मैंने दिल ही दिल में ये सोचना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी माँ का जादू जब ख़त्म हो जाएगा और तुम दोबारा से मेरे दीवाने हो जाओगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगी, तब मैं तुम्हारे सामने नखरे करूंगी, अपना सारा बदला लूंगी तुमसे। तुमने मुझे रातों को रुलाया है, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मेरे दिल में बदले की आग लग गई थी। वो मेरा शौहर था, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन दिल ही दिल में उससे इंतकाम भी लेना चाहती थी। उससे वो सब महसूस करवाना चाहती थी जो उसने मुझे महसूस करवाया था, वही बेरुखी और वही लापरवाही भी। तीसरे दिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और शाम भी होने वाली थी जब मैंने अपनी पूरी सूरत पढ़ ली थी और अपनी आंखें खोली तो अपने सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा वजूद बैठा था जिसे ना तो मैं इंसान कह सकती थी और ना ही जानवर। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं मुसलसल इस कदर चीखी चिल्लाई कि बेहोश हो गई वहीं पे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे ने मुझे जगाया जो मुसलसल मुझे हिला रहा था और कह रहा था कि जाग जाओ। आज वो बच्चा भी बोल रहा था। मैं जाग गई और मैंने उसकी तरफ देखा और फिर अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे पता था कि मैं अब बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। अब मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे कहा गया था कि मुझे डरना नहीं है और अपना मसला बताना है, लेकिन मैं तो डर के मारे बेहोश हो गई थी और अब ये आलम था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसीलिए मैंने अब रोना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद फिर वो बच्चा भी वहाँ से चला गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक औरत थी जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये वही औरत थी जो मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे दिल को धड़का सा लग गया था कि ये औरत यहाँ पर कैसे आ सकती है। उसने कहा कि तुमने जो करना था वो कर लिया है, देखो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। मैंने कहा था कि वो तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं बुरी तरह से डर गई। इसलिए उसने कहा कि नहीं, वो मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि जो उसके साथ हुआ है वही सब कुछ वो तुम्हारे साथ करना चाहती थी, ताकि उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि वो भी इसी तरह यहाँ पर अमल करने के लिए आई थी और बुरी तरह से डरकर चीखते चिल्लाते हुए यहाँ से भाग खड़ी हुई थी, और इसीलिए उसको सज़ा मिली कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं हैरान रह गई कि नजमा ने तो मुझे ये बात नहीं बताई थी। मैंने कहा कि क्या मुझे भी सज़ा मिलेगी और
کیا میں بھی کبھی بھی ماں نہیں بن سکوں گی اب؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ تمہارے ساتھ برا ہوا ہے۔ نجمہ نے یہ سب کچھ اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پر بیٹھ کر کوئی عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو سزا مل گئی تھی۔ اور ابھی بھی نجمہ وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے۔ اس کے پاس تو کوئی بھی کرامات نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف جھوٹ بولتی ہے۔ وہ لوگوں کو جھوٹے تعویذ لکھ کر دیتی ہے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ جو بچہ بار بار تمہیں نظر آ رہا تھا، یہ میرا ہی بچہ ہے، اور میں خود اسی درخت پر رہتی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں بہت سخت حیران تو ہوئی تھی لیکن ڈر نہیں رہی تھی، کیونکہ اس عورت کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی کی ماں اس کو پیار سے سمجھا رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ بالکل مجھے بھی سمجھاتی جا رہی تھی۔ اب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی کی دعائیں تھی تبھی تو پہلے یہ بچہ آتا رہا، اور پھر میں نے بھی تمہیں روکا، لیکن اس کے باوجود بھی جب تم نہیں رکی اور یہاں پر آ گئی، تم نے عمل بھی کیا، وہ غلط تھا، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے کسی کی دعاؤں نے بچا لیا، لیکن میرا مسئلہ تو نہیں حل ہوا نا، اور میری ساس نے تو مجھ پر شدید قسم کا سخت جادو کیا ہوا ہے۔ کیا میری ساس کو اس چیز کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا میں ہمیشہ ہی ایسی تکلیف میں رہوں گی؟ اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گی؟ تم بالکل بھی تکلیف میں نہیں رہو گی۔ اب تم میری اچھی طرح سے بات سنو، تم میری ایک بات مانو، اور اب جو میں تمہیں بتاتی جا رہی ہوں اس پر چپ چاپ عمل کرتی جاؤ۔ دیکھو، اس سورت کو پڑھنے سے الگ الگ قسم کے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر تم اس سورت کو ثواب کی نیت سے پڑھو گی اور 15,000 دفعہ بھی پڑھو تو کوئی بھی جن کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کسی کی بھی حاضری نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر تم نے کسی کو حاضر کرنا ہے یا ان کو قابو میں کرنا ہے اپنے، تو پھر وہ حاضر بھی ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ اس میں صرف اور صرف نیت کا کھیل ہے۔ تمہاری تو نیت بالکل بری نہیں تھی، تم تو صرف اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، تم تو کسی کا بھی کچھ بھی برا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تو تمہارے ساتھ بھی کچھ برا یا غلط نہیں ہوا۔ لیکن تم نے دوبارہ اس طرح کے کاموں میں کبھی بھی نہیں پڑنا۔ تم نے بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کسی کا بھی کبھی برا نہیں سوچنا۔ تمہاری زندگی میں سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی برا کرتا ہے تو وہ بے شک کرتا رہے، تم نے بس صرف اور صرف اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اور میں بھی تمہارے لیے ڈھیر ساری دعا کروں گی۔ انہوں نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے سر میں جو درد ہو رہا تھا وہ درد بھی ایک دم سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اب آج کے بعد اس عورت کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، اور اس طرح کی کوئی حرکت کبھی کسی صورت نہیں کروں گی۔ اب میں خاموشی سے وہاں سے پلٹی اور چپ چاپ واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا کہ کہاں چلی گئی تھی، گھر کے کام نہیں کرنے تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی سارے کے سارے کام کر دیتی ہوں۔ میں نے ان کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ڈاکٹر سے میں نے اپنا علاج بھی کروانا شروع کیا، اور 3 مہینے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی تھی۔ اللہ نے مجھے اب 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ جب میرے بیٹے اس دنیا میں آئے تو میری ساس کا تو رویہ ہی میرے ساتھ بدل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کا رویہ بھی بدل گیا۔ اب میرا شوہر پھر سے مجھ پر جان دینے لگا تھا، اور میری آسانی کے لیے اس نے گھر میں ایک نوکرانی بھی رکھ کر دے دی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تم تو دونوں بچوں کو سنبھالو گی یا گھر کے کام کرو گی۔ اسے پھر سے اب میرا احساس ہونے لگا، اور میری ساس بھی میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی اور میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی تھی۔ میں بچوں کو سنبھالنے میں پورا دن مصروف رہتی۔
میرے دل میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں آتی تھی۔ اب مجھے شوہر کی بھرپور محبت اور توجہ بھی مل گئی تھی اور مجھے اپنی اولاد بھی مل گئی تھی۔ میں نے اپنا دل اور دماغ صرف اور صرف اللہ کی طرف لگا لیا تھا، اسی کی عبادت کرتی رہتی اور اپنے دل سے ساری نفرت کو نکال دیا تھا، تو اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔